Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Student, today date is 10 November 2020. Today I start a new chapter, that is chapter number 18, map reading, locating places. So before this, let's do the little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in previous video we have completed the long question answers of the chapter 17, that is environment pollution. Now today we will start a new chapter, that is chapter number 18. Name of the chapter is map reading, locating places. So what are the things which I explain you in this chapter are: what is the language of the maps? If you see the map, but if you are unable to understand it, the language of the map, then you are unable to understand the map. And what is the use of the atlas? That we will understand in this chapter. So student, in the beginning it is given that in the previous class you must have read about plans and direction. You may have also drawn the map of your class. Okay, so let's do recapitulation what things we have studied in our previous class. So in the previous class we study sketch, plan, and little introduction of the map also. In the previous class we do the study of the sketch, plan, and little introduction what is a map, that we have done in the previous class. So now student, first of all let's start with the sketch. See, what is a sketch? Sketch is a, you can say, a rough drawing of any place. Okay, what is a sketch? Sketch is a rough drawing of any place. जहां आप रहते हो अपने नेबरहुड में, अगल बगल की जो जगहें हैं सराउंडिंग्स में, तो स्केच क्या हो सकता है?
a rough drawing of any place, that is a sketch. एक रफ ड्राइंग आपने बना दी, जैसे आप अपने ही घर की सोच लो, आप अपने घर से स्कूल कैसे आते हो, ठीक है, तो आप अपने घर दिखाओगे, आप यहाँ रहते हो, ठीक है, दिस रोड बाई कार आते हो या बाई बस आते हो, तो एक रफ ड्राइंग बनाओगे, इन दिस दिस इज द वे हाउ यू कम टू द स्कूल, तो उस एरिया की एक रफ ड्राइंग बना दी, दैट इज द स्केच. क्लियर? प्लान. नाउ plan, what is a plan? A map that show a map that show smaller area like room. A map that shows smaller area like room. या तो आप अपने हाउस का भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कि आपके हाउस में 2 रूम्स है, 3 रूम्स है, तो एक अपने हाउस का भी एक मैप प्लान बना सकते हो आप, ठीक है. सो व्हाट इज द प्लान? What is the plan? A map that show smaller area like room, or you can draw a plan of your house also, or you can draw a plan of your house also. Now let's start with the map. Now let's understand, student, map. A map is the drawing. Map is the drawing of any place. बैंक भी हो सकता है, बैंक, कॉलोनी, टाउन, सिटी और ए कंट्री. सी स्टूडेंट, नाउ आई एम रीडिंग दिस, तो आपको ये पहले बहुत कुछ स्केच की तरह लगेगा. व्हाट इज अ स्केच? जो जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था फ्यू मिनट्स बिफोर, आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड विद द डेफिनेशन ऑफ द स्केच आल्सो. स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस. अब मैप का पढ़ो. ए मैप इज द ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस, वो भी किसी प्लेस की क्या ड्राइंग ही थी, स्केच. और ये भी क्या है? मैप इज द ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस. कोई बैंक का भी हो सकता है, कॉलोनी, टाउन, सिटी और ए कंट्री. बट नाउ स्टूडेंट, why we say sketch as a rough drawing and map is the drawing of a place? Now this difference try to understand, because there is a method is same. In that, in sketch also we draw a drawing, in map also we are drawing a drawing of any place, but how the sketch is, or you can say how the map is differ, or map is different from the sketch. So note down the point so that you can understand much better in simple way. See, maps
are very useful to find the location of a place. Second, a map shows us the distance we have to cover. See, that is the difference between a sketch and a map. Sketch is also a drawing of any place. Map में भी यही बोला कि map is also a drawing of any place. But how they are differ with each other? See, map in the case of a sketch is a rough drawing. But map is not a rough drawing. देखो, there is sketch is a rough drawing of any place. मैप क्या है? मैप इज द ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस. बैंक भी हो सकता है, टाउन भी हो सकता है, कॉलोनी भी हो सकती है, सिटी भी और एक कंट्री भी. नाउ सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई द मैप्स आर मोर इंपॉर्टेंट. व्हाई मैप इज मोर इंपॉर्टेंट देन sketch. So this is the main point. Map are very useful to find the location of a place. It means what? It means direction are used in the map. किसी भी प्लेस की वो एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं मैप आपको. ठीक है, मैप से आपको जहां भी जाना है, वेयर यू हैव टू गो एनीवेयर, द मैप विल टेल यू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस. क्योंकि मैप्स किसके हेल्प से ड्रॉ होते हैं बेटा? डायरेक्शन के हेल्प से. अभी हम लोग डायरेक्शन फर्दर वी विल डिस्कस. अभी एक समरी, एक छोटा सा इंट्रो आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं कि कैसे कैसे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. ठीक है, मैप क्यों ज्यादा यूजफुल है? बिकॉज मैप टेल यू द लोकेशन ऑफ द प्लेस. बिकॉज मैप्स आर ड्रॉन with the help of the direction. Another powerful thing is that a map shows us the distance we have to cover. मान लो आपको वाराणसी में रहते हो, आपको लखनऊ जाना है, तो मैप से आपको यह भी पता चल जाएगा कि हाउ मच डिस्टेंस यू हैव टू कवर. इज इट क्लियर? सो बाय सीइंग द मैप, this is also, it gives you the exact location of the place also, and it also help us to tell you that how much distance you have to cover. So with the help of map you are able to understand both the things. Is it clear? If you want to note down in a rough copy, you can write or you can take the screenshot also. Now student, there are some so how to read the map. There are few things which help us to read the map, so that things we are discussing now. जैसे हाउ टू रीड ए मैप. मान लो बेटा आपको मैप दे दिया मैंने कोई एक, ठीक है, अगर ये स्कूल ओपन होता, क्लास एक्टिविटी होती, तो एक एक मैप दे देते. ठीक है, और उस मैप में मैं बोलता अब तुम्हें ये सब रिलेटेड इंफॉर्मेशंस मुझे बताओ. तो इसके लिए तुम्हें मैप रीड करना आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैप में क्या लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं.
how we will understand the map. Okay, so if you get the map, so what is the method how you will read the map, that I will explain you now. Now we are studying how to read the map. First, maps are always drawn on a scale. First point. Second, it is not possible to make maps of the actual site. Third point, maps are made in smaller size. Easy to carry. Distance shown on map is smaller than the actual distance. Fixed ratio to the actual distance. Now see student, these are the point which I have written on the board. Now when I will explain this point, then your concepts are clear. Now see, maps are always drawn on a scale. So why we draw a map on a scale and how we use a scale, that things I will explain you after point number 2. See, maps are always drawn on a scale. So whenever, okay, I start from the first point. Okay student, whenever we draw a map, जब भी हम मैप ड्रॉ करते हैं तो फर्स्टली इट इज ड्रॉन ऑन ए स्केल. ओके. सेकेंड है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक मैप ऑफ द एक्चुअल साइज. सी स्टूडेंट, हम कभी भी एक्चुअल साइज का मैप नहीं बना सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, हाउ. सो सी स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल you are living in the city, the name of your city is वाराणसी. वाराणसी काफी बड़ा शहर है ना. अगर मैं बोलूं कि वाराणसी का मैप बनाओ, सो इट इज पॉसिबल दैट वी मेक अ एक्चुअल साइज मैप. इतना बड़ा पेपर लाना पॉसिबल होगा?
जस्ट थिंक अबाउट इट, इट इज पॉसिबल। बनारस इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा पेपर हम ला सकते हैं बेटा? मार्केट में इतना बड़ा पीस ऑफ पेपर मिलता है? सो आंसर इज नो। ठीक है। और दूसरा रीजन इसका क्या है? मान लो इंडिया का मैप बनाना है, तो इंडिया तो बहुत बिग कंट्री है, इतना बड़ा पेपर हम कहां से लाएंगे? और इतने बड़े बड़े मैप बना लेंगे तो उसे कैरी कैसे करेंगे? बिकॉज वेन एवर वी गो टू न्यू प्लेस एंड वी डोंट नो मच अबाउट दैट सिटीज, तो हम लोग को किसी भी एरिया में जाना है, फाइंड आउट करते हैं, तो एक बुक होती है मैप बुक, वी सी द बुक, इट्स अ स्मॉल बुक सो दैट यू कैन इजिली कैरी इट विद यू। एक छोटी सी मैप बुक होती है जिसको इजिली आप अपने संग कैरी कर सकते हो। ठीक है। अगर मैप इतने बड़े बड़े बनने लगते, इतनी बड़ी इंडिया की कंट्री उतना बड़ा मैप बना देते, एक तो उतना बड़ा पीस ऑफ पेपर नहीं मिलेगा पहली बात, और बाई चांस इतना बड़ा बना भी दिए तो अनदर थिंग इज दैट हाउ यू विल कैरी, तुम उसे कैरी कैसे कर सकते हो? इट इज पॉसिबल टू कैरी? अगेन द आंसर इज नो। ठीक है। तो मैप में क्या है बेटा? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक मैप ऑफ द एक्चुअल साइज। किसी भी चीज का हम लोग मैप बनाते हैं तो जो मैप होता है वो स्मॉल साइज का बनता है। अब बात समझ में आई? जैसे बनारस की बात करें, अब जितना बड़ा बनारस है इतना बड़ा मैप थोड़ी ना हम बना सकते। सो व्हेन वी आर मेकिंग द मैप, वी आर मेकिंग द मैप ऑफ स्मॉल साइज, एक्चुअल साइज नहीं बनाते हैं, एक स्मॉल साइज का। आप लोग ने एटलस ओपन की करके देखी होगी, उसमें इंडिया का भी मैप होगा, वर्ल्ड मैप भी उसमें होगा, वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज आ गई, और वो कितना 1 पेज में होगा। तो दैट इज द रीजन मैप, हम जितनी बड़ी कोई चीज का साइज होता है उतना बड़ा हम मैप नहीं बना सकते एक्चुअल साइज का। ठीक है। जो ओरिजिनल एक्चुअल साइज होता है उसका हम स्मॉल साइज का मैप बनाते हैं। हम कैसा मैप बनाते हैं बेटा? स्मॉल साइज का मैप बनाते हैं। एंड दैट इज द रीजन। अब मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, इसीलिए हम लोग मैप में क्या यूज करते हैं? स्केल। ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। दैट इज द रीजन। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था? मैप आर ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्केल, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक मैप ऑफ द एक्चुअल साइज। जितना कोई का साइज उतना बड़ा मैप हम बना ही नहीं सकते, मैप का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज ड्रॉ मैप ऑन ए स्केल। व्हाट इज द यूज ऑफ स्केल अभी मैं बताऊंगा। थर्ड पॉइंट देखिए, मैप्स आर मेड इन स्मॉलर साइज। ठीक है। यही अभी जस्ट मैंने बताया आपको, मैप्स क्या एक्चुअल साइज के नहीं बनते हैं, स्मॉल साइज के बनते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इजी टू कैरी, जिससे कि मैप्स को इजिली कैरी किया जा सके। ठीक। तो मैप्स आर मेड इन स्मॉलर साइज, इजी टू कैरी। नेक्स्ट है, डिस्टेंस शोन ऑन मैप इज स्मॉलर देन द एक्चुअल डिस्टेंस। जो डिस्टेंस मैप में शो करता है वो एक्चुअल डिस्टेंस से क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। उसका रीजन क्या है? मान लो हमें वाराणसी से लखनऊ जाना है, और वाराणसी से लखनऊ का डिस्टेंस मान लो 300 किलोमीटर है, तो इतना बड़ा पीस ऑफ पेपर मिल सकता है? इतना बड़ा 300 किलोमीटर बड़ा पेपर मिलेगा? आप उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस दिखा सकते हो मैप में बेटा? सो आंसर इज नो। इसलिए उसे स्मॉल साइज में दिखाते हैं। एंड हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द स्केल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनी मैप कैनॉट बी ड्रॉन विदाउट द स्केल। और सारे मैप में स्केल होता है, और ये जो स्केल होता है इट इज नॉट फिक्स। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। जितने भी मैप्स होते हैं उसके अपने अलग अलग डिफरेंट स्केल यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम द स्केल इज फिक्स, कि इतना ही है, नहीं, सबके डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट है। ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मैप्स। एक बार इसकी रिकैप्चुलेशन कर लो बेटा। मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्केल। ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक मैप्स ऑफ द एक्चुअल साइज। अब एक्चुअल साइज का मैप हम नहीं बना सकते, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसलिए जो हम लोग मैप बनाते हैं ओरिजिनल वो किस साइज का होता है? स्मॉलर होता है। एक्चुअल साइज से वो बहुत छोटा होता है, सो दैट इट कैन इजिली बी कैरीड आल्सो। अनदर
डिस्टेंस जो मैप पे हम लोग शो करते हैं इज स्मॉलर देन द एक्चुअल डिस्टेंस। अब 300 किलोमीटर जाना है तो 300 किलोमीटर इतना बड़ा डिस्टेंस हम मैप पे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। सो हाउ दिस थिंग्स आर पॉसिबल? दिस थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द स्केल। ये किससे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ द स्केल। नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस अबाउट द स्केल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्केल पे। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस between two cities. फॉर एग्जाम्पल बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज 200 किलोमीटर है। नाउ द सेम थिंग हाउ वी शोन ऑन द मैप। ऑन द मैप में हम इसे ऐसे शो करेंगे, मैप में कैसे शो करेंगे? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज 200 किलोमीटर है। ठीक है, और इससे हमने मैप में क्या शो किया? 2 सेंटीमीटर के बराबर शो किया। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। इसका यही मीनिंग हुआ ना बेटा? दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस कितना था? 200 किलोमीटर था। मैप में हमने इसको शो किया 2 सेंटीमीटर। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हुआ? 100 किलोमीटर के। और अगर ये 2 सेंटीमीटर दिया है देन इट इज मीन्स 200 किलोमीटर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करते हो ना? ठीक है, 2 सेंटीमीटर ले लिया, मैप है 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप ले लिया, तो इसका मतलब क्या? इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर को, ये आप 2 सेंटीमीटर देख रहे हो ऑन द मैप, 200 किलोमीटर था दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस, और अब मैप में दिखा रहा है 2 सेंटीमीटर। तो व्हाट डज इट मीन्स? इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग यही हुआ ना बेटा कि 2 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हुआ? 100। ठीक है, जब मोर के बारे में दिया जाए और लेस के बारे में पता करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 200 को डिवाइड कर दिया 2 से, एंड व्हाट आंसर कम? 100, क्योंकि इसने बोला था ना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में 200 है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? जब ज्यादा के बारे में दिया रहे और कम के बारे में पूछा हो, तो डैट बेसिक ऑपरेशन इज ऑफ ए डिवीजन। वो बेसिक ऑपरेशन किसका होता है बेटा? डिवीजन का होता है।
यहाँ 2 सेंटीमीटर के बराबर दिया है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 200। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 2 सेंटीमीटर को 200 उसने लिख दिया, 200 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर लिख दिया, तो 1 सेंटीमीटर का कितना हुआ, तो सिंपली आप 200 किलोमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, 1 का अपने ही पता चल जाएगा। सो व्हेन यू डिवाइड 2 विद 200 यू गेट आंसर 100। 100 क्या आ गया, 100 किलोमीटर। तो अब देखो 1 सेंटीमीटर को 100, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर। सिंपली ये है स्केल। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट।